اور منشور. ہماری دنیا غیر متوازن تھی. دنیا کو متوازن کرنے کے لیے وہ دنیا میں آیا. یہ مینیفیسٹو ہے میرے خداوند کا. خداوند یسوع مسیح ہماری غیر متوازن دنیا کو توازن دینے کے لیے دنیا میں آئے تاکہ رشتوں میں توازن آ جائے. سوسائٹی اور معاشرے میں زمین پہ تو سی امیر غریب ہو سکتے ہو لیکن میرے خدا کی بادشاہی میں کوئی امیر غریب نہیں ہوگا. سب برابر ہوں گے. یہ ہے اس کی بادشاہی. یہ ہے اس کا منشور. یہ لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان. آؤ دیکھیں مقدس کلام میں سے لوکا طبیب کی معرفت انجیلی بیان اب آپ 14ویں آیت سے 22ویں آیت مقدسہ تک ہم پڑھیں گے. المسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد اور منشور. جی پاسٹر آصف ہارون پڑھنے میں مدد فرمائے. پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا لوٹا گلیل کو لوٹا اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے. اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں. کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا. اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی. وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلی تھی تعجب کر کے کہنے لگے کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں. بہت شکریہ. مقدس کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت سب کے آمین. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ یسوع المسیح کے دنیا میں آنے کا مقصد اور منشور. غیر متوازن دنیا کو توازن دینے کے لیے وہ دنیا میں آیا. یہ آج کا ٹاپک ہے. جو کانٹیکسٹ ہے اس کا سارا اس چیپٹر کا اس میں خداوند یسوع مسیح یوحنا سے پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں اور بپتسمہ لینے کے بعد یسوع مسیح بیابان میں 40 ڈیز کے لیے ابلیس انہیں آزماتا ہے. اور پھر 13ویں آیت اگر آپ دیکھیں 13ویں آیت مقدسہ تو لکھا ہے جب ابلیس تمام آزمائش کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جدا ہوا. اور پھر یسوع مسیح روح القدس کی قوت اور قدرت سے بھرا ہوا اپنی منسٹری کا آغاز کرتا ہے. پاورفل آغاز. ہیلیلویا. منسٹری کا آغاز دعا روزے سے کیا. آزمائشیں بھی آئیں. تن پروری کی آزمائش, بھوک کا سامنا, تنہائی کا سامنا, چیلنج کا سامنا اور ایون پیشکش بھی ہوئی. ہم منسٹری میں اس وقت ناکام ہو جاتے ہیں جب ہم پیشکش کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں.
इस पर पहले भी मैंने बताया था कि एक तरफ इब्लीस है जो उसके सामने आजमाइशें रख रहा है, उसे पेशकश कर रहा है कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। ये कोई ख्याली बात नहीं थी, वो पूरी दुनिया पर रूल कर रहा था। ये आजमाइश हकीकी थी। एक तरफ वो आजमाइशें और पेशकश कर रहा है और दूसरी तरफ फरिश्ते खिदमत के लिए आ गए। अब फैसला हमारे खुदावंद ने करना था। हमें भी इसी तरह सीखने की जरूरत है कि एक तरफ इब्लीस हमें पेशकश करता है, एक तरफ आसान रास्ता है, एक तरफ शॉर्टकट वे है कि हम कुछ गलत करें, गलत तरीके से दौलत, रुपया, पैसा, शोहरत पाकर ऊपर चले जाएं। लेकिन वो ऊपर जाना ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। जैसे ऊपर जाएंगे वैसे नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो सरफराजी और कामयाबी खुदा की तरफ से नहीं है। दूसरी तरफ खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है। लिखा है जब वो नाकाम हो गया, जब वो चला गया, तो फरिश्ते यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। हालेलुया। फिर खुदा आपकी सरफराजी का जो हिस्सा है वो आपको देता है। हालेलुया। ते हुण फैसला तुसी करना है कि तुसी किहड़े पासेों लैना। कईयां ने लिया इबलीस वालों हुंदा है ते एवें कही जाणगे ओदी मेहरबानी, ये नाम ही नहीं लैणगे, ओदी मेहरबानी, उत्ते हत्थ करनगे। भाई ऊपर और बहुत कुछ है, तारीकी की कुव्वतें भी हैं जिनके बारे में कलाम फरमाता है कि हमारी लड़ाई खून और गोश्त की नहीं है, बल्कि तारीकी की कुव्वतों के साथ है जो आसमानी मकामों में है। जिन्होंने दानियल की दुआ रोकी थी, फिजाओं के अंदर, हवाओं के अंदर मोकलात हैं जो हमारी दुआओं को रोकते हैं। तो इसलिए याद रखें कि हमने बरकत दुरुस्त तरीके से लेनी है, वक्त पर लेनी है, और हमने खुदावंद से लेनी है, इब्लीस और उसकी गुफ्तों से नहीं लेनी। ये 13वीं आयत की बात है। फिर 14वीं आयत में लिखा है कि वो उसकी कुव्वत और कुदरत से भरा हुआ अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करता है। और फिर जब हम देखते हैं 14वीं और 15वीं आयत, तो वहां पर लिखा है, पढ़िए जी। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ जी गलील को लौटा और सारे गिरदोनवाह में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। उनके इबादत खानों में, जो सुलेमानी हैकल थी वो उसे इबादत खाना नहीं कहते थे। ये छोटे छोटे प्रेयर सेंटर उन्होंने बनाए हुए थे जिसे सिनागॉग बोलते थे। वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, 581 और 82 कब्ल मसीह, बिफोर क्राइस्ट, इबादत खानों का रिवाज नहीं था। 581 और 82, 581, 82 बिफोर क्राइस्ट BC, इबादत खानों का कॉन्सेप्ट नहीं था। इबादत खानों का तस्वर एक्चुअली उस वक्त हुआ जब बनी इस्राइल असीरी में चले गए। हैकल जला दी गई, हैकल बर्बाद कर दी गई, फसीले उसके फाटक जला दिए गए। तो फिर बनी इस्राइल ने क्या किया? छोटी छोटी इबादत गाहें बना ली जिसे सिनागॉग कहते थे, और वो वहां पर इबादत करते, प्रस्तुत करते थे। कराची में भी, हमारे मुल्क पाकिस्तान में 1951 और 52 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 1300 यहूदी उस वक्त आबाद थे। 1300 उस वक्त आबाद थे। और वहां पर भी एक इबादत खाना सिनागॉग मौजूद थी, जहां पर आज कराची में एक प्लाजा बन चुका है वहां पर। और उसके बाद वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चले गए, जिसका जी चाहा, जिस कंट्री में वो जाना चाहा वो निकल गए वहां से।
अब पाकिस्तान में कोई यहूदी नहीं है। इबादत खाना लिखा है, वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। और अगर आप 16वीं आयत पढ़े, देखिए 16वीं आयत में, और वो नासरत में आया, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई, जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक। ये लफ्ज बड़ा गौरतलब है, अपने, यानी रूटीन थी खुदावंद की, छोड़ा नहीं अपनी रूटीन को। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, इबादत गाह में जाने की रूटीन को छोड़े ना। आपको अगर इख्तलाफ है इबादत खाने से या इबादत खाने वालों से, लेकिन आपको जिसकी इबादत करते हैं उससे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। यीशु जानते थे कि यहूदियों का सिस्टम दुरुस्त नहीं है, वो दिखावे की रासबाजी करते हैं, दिखावे की इबादतें करते हैं, दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन ये उसका दस्तूर था। उसने ये नहीं कहा कि अब ये ठीक नहीं है, इनका सिस्टम मुझे पसंद नहीं है, मैं गिरजा ही नहीं आना, मैं चंदा ही नहीं देना, मैं गीत ही नहीं गाना, मैं प्रस्तुति नहीं करनी, मैं ताड़ा मुतफिक ही नहीं। नो, क्राइस्ट ने ऐसा नहीं किया। लाख वहां पर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कलमाए खुदा दस्तूर के मुआफिक इबादत खाना में जाता रहा। आज हमें इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अपना ताल्लुक, अपना लिंक, अपना रिश्ता, अपना नाता आसमान के खुदा से जोड़े रखें। वहां पर मजहबी गिरावट थी, इसके बावजूद उसने इबादत खाना में जाना ना छोड़ा। यीशु का दस्तूर था। एक और पॉइंट है, वो अगर नोट कर ले तो बहुत अच्छा है। यहूदी इबादत का आगाज इस्तस्ना 6 बाब की 6 आयत से लेकर 8वीं आयत तक किया जाता था। आओ देखें, जिसे बरकत का ऐलान भी कहते हैं, ब्लेसिंग डेक्लेरेशन इसे बोलते हैं। और वो जब इबादत का आगाज करते थे तो इस्तस्ना की किताब 6 बाब की 4 आयत से 8वीं आयत को पढ़ते थे, और फिर इबादत का आगाज होता था, ब्लेसिंग को डिक्लेयर करते थे। आओ देखें, सुने इस्राएल, हाँ जी, खुदावंद हमारा खुदा, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से, और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, मोहब्बत रख। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ, आज मैं तुम्हें देता हूँ, तेरे दिल पर नक्श रहे, तेरे दिल पर नक्श रहे, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और फाटकों पर लिखना। इससे इबादत का आगाज करते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने दस्तूर के मुआफिक वहां पर जाते हैं, और फिर जब हम 16, 17 और 18 आयत पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वो अपने मंशूर का ऐलान करता है। खुदावंद अपने मिशन का ऐलान करता है। आओ देखें, 16 से 18 तक पढ़ दीजिए भाई जी। और वो नासरत में आया जी, जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यशाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था,
कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। बहुत शुक्रिया। ये मंशूर है खुदा के बेटे यीशु के दुनिया में आने का। हालेलुया। उसने अपने मंशूर का ऐलान किया कि वो दुनिया में क्यों आया है। वो दुनिया जो गैर मुतवाज़िन हो चुकी थी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जुल्म की इंतहा यह है कि दुनिया में एक हिस्सा खुश्की है और 3 हिस्से पानी है, लेकिन अफसोस कि लोग साफ पानी से महरूम हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? जुल्म, ज्यादती, वसाइल की तकसीम का दुरुस्त ना होना। आप दुनिया को देखें, दुनिया पर गौर करें। वो ममालिक जिनमें कसरत से अनाज पैदा होता है, कसरत से वहां पर गंदम और चावल की फसलें हैं, लेकिन लोग रोटी के लिए बेचारे मोहताज और तरसते और लाइनों में लगते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि दुनिया में तवाज़ुन नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ये सिखाना चाहते हैं कि जिस्मानी दुनिया और रूहानी दुनिया में जो है, मैं उसको तवाज़ुन बख्शने के लिए आया हूं, मैं उसे ठीक करने के लिए आया हूं। मैंने इस पर एक एग्जाम्पल दी थी। लातीनी अमेरिका में किसी कंपनी ने एक बड़ी मशीन का ऑर्डर किया, और जब वो मशीन उनके पास पहुंची तो वहां के इंजीनियर्स, उनके मैकेनिक्स ने उसको चलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो उनसे ना चली। उन्होंने फिर यूरोप के उस मुल्क को जहां से वो मशीन गई थी, उस कंपनी को लिखा कि आप अपना इंजीनियर भेजें जिसने इस मशीन को बनाया है, ताकि वो इसको चला सके। हमने बड़ी कोशिश की, ये नहीं चल रही। उन्होंने अपना इंजीनियर जो बनाने वाला था उसको भेज दिया, और जब वो उसको एयरपोर्ट पर लेने आए तो देखा बिल्कुल छोटा सा लड़का, यंग, छोटी उम्र का। वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा ये क्या मजाक खेला है इन्होंने, 1-2 लाखों करोड़ों की ये मशीन है और ऊपर से मुंडा निकाह जा भेज देता है इन्होंने। उन्होंने उनसे राब्ता किया कि असी तानू कैसी इंजीनियर भेजो, इहदा जिहड़ा खालिक है उन्होंने भेजो। ते ए निकाह जा मुंडा आ गया। उन्होंने कहा निकाह जा मुंडा है, बनाई भी इन्हें ही है। हालेलुया। तो कई लोग हैरान होते हैं कि खुदा जो कादिर मुतलक है वो कैसे दुनिया में आ सकता है, एक छोटे बच्चे के जरिए से जाहिर हो सकता है। तो दुनिया को जान लेने की जरूरत है कि आपकी बिगड़ी हुई दुनिया को बनाने वाला भी खुदा का कलमा है। यीशु मसीह है, वो दुनिया में आया है ताकि दुनिया को ठीक कर सके, दुनिया को मतवाज़न कर सके। आपकी बिगड़ी हुई दुनिया, आपकी यूनिवर्स किसने बनाई है? कलमे ने, और उसी कलमे ने जिस्म लिया। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। ऐ ताड़ी बिगड़ी दुनिया नू, खराब दुनिया नू खुदा दा बेटा यीशु ठीक कर सकता, कोई और नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि उसने इसको बनाया है। क्रिएटर है, खालिक है, ये मंशूर है उसका। हमारी रूहानी दुनिया और हमारी जिस्मानी दुनिया, दोनों तरह की दुनिया को यीशु मसीह ठीक कर सकता है। ये उसका मैनिफेस्टो है, ये उसका मंशूर है, इसलिए वो दुनिया में आया। 18वीं आयत से पहले हम पढ़ेंगे, लिखा है कि लोग उसकी तालीम से हैरान थे, उसकी बढ़ाई कर रहे थे। क्यों बढ़ाई कर रहे थे? कि उसकी मिनिस्ट्री बड़ी जबरदस्त थी। देखिए मरकस दूसरे बाब की 12वीं आयत, मरकस दूसरे बाब की 12वीं आयत।
उसका मिशन हैरान कुन था, उसका मिशन जलाली था, और उस वक्त के लोग बड़े ताज्जुब कर रहे थे कि ये हैरान कुन काम कैसे हो रहे हैं। और वो उठा जी, और फिर 4 चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। वाव। चुनाचे वो सब हैरान हो गए, चुनाचे वो सब हैरान हो गए, और खुदा की तमजीद करने लगे। हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। ना यसू तो पहले ते ना यसू तो बाद इस तरह दे हैरान कुन काम कोई कर सकिया। ये मंशूर था उसका कि बिगड़ी हुई दुनिया, गैर मुतवाज़न दुनिया को तवाज़ुन बख्शे। एक और हवाला भाई जी पढ़िएगा, मत्ती 9वें बाब की 33वीं आयत, मैथ्यू 9:33, 9वें बाब की 33वीं आयत जी। और जब वो बदरू निकाल दी गई, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताजुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। अगले दिनों में मैं यीशु नाम की अजमत पर पैगाम देने वाला हूं, और उन लोगों को यह जवाब मिलेगा कि यीशु नाम की कुदरत आज भी उसी तरह जारी और सारी है। जब वो खुद मौजूद थे इस दुनिया में तो लोग शिफा पाते थे, क्योंकि बेशुमार लोग समझते कि पत्नी जो मसीही हैं एक काला इलम कर देने। तुसी वेख्या होएगा इस तरह के झूठे बहुतान इल्जामात मसीहों पर लोग लगाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग मसीह की तरफ ना आए। दुनिया ने बाइबल की बड़ी मुखालफत की, दुनिया ने इंजील की बड़ी मुखालफत की, दुनिया ने मसीह ईमान पर बड़े बहुतान लगाए हैं, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी कि दुनिया में आज भी बाइबल सबसे ज्यादा छपने वाली और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, और पूरी दुनिया में आज भी लोग बाइबल से मोहब्बत करते हैं। और बाइबल ऐसे नहीं हम तक पहुंची, शहीदों के खून के दरिया में से बहती हुई तैरती हुई हम तक पहुंची है। यीशु नाम की कुदरत आज भी जारी और सारी है, और ये मिशन आज भी जारी और सारी है। ये मंशूर जो उसने हमें दिया, और देखे उसने खुद फरमाया था, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 14वां बाब 12वीं आयत, उसका मंशूर जिसका उसने ऐलान किया, ना कि वो खुद करता था, उसने कहा कि ये काम तुम भी करोगे। और सुने कलाम के इस हिस्सा में इस बात को, यूहन्ना 14:12, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। हालेलुया। उसका मंशूर, उसका मिशन, उसका मैनिफेस्टो, जो कुछ उसने किया, अब उसने ईमानदारों को, कलीसिया को दे दिया है। इस आयत की थोड़ी सी तस्हीह मैं करना चाहता हूं। जो सादा लोग हैं, जो बाइबल ध्यान से नहीं पढ़ते, वो कहेंगे ये सुन के आए तुसी मेरे तो भी बड़े बड़े काम करोगे। कोई शागिर्द उत्साद से बड़ा नहीं हो सकता। उसने कहा इन कामों, जो काम मैं कर रहा हूं, इनसे भी बड़े बड़े काम। उसने अगर 10,000 15,000 लोगों को खाना खिलाया था या इंजील सुनाई वहां पर, तो आज लाखों के मजमों को इंजील सुना रहे हैं उसके खादिम। ये बड़ा काम है, हैरान कौन है। हम यीशु से बड़े नहीं हो सकते, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और हम हीलर भी नहीं हो सकते, हीलर वही है, यीशु शाफी है। हालेलुया। हमने एक टॉपिक पर कलाम सुना था, यीशु मेरे लिए काफी है। याद होगा आपको, मैंने डिविनिटी बयान की थी, डाइटी ऑफ क्राइस्ट पर मैंने तालीम दी थी कि यीशु मसीह ही हमारे लिए काफी है। तो इसलिए उसने ये मंशूर हमें भी दिया है कि हम दुनिया को बचाएं।
रूहानी दुनिया में और जिस्मानी दुनिया में, रूहानी आलम में और जिस्मानी आलम, दोनों तरह से हमें दुनिया को बचाने की जरूरत है, क्योंकि उसके मिशन का तसलसल जारी है। गरीबों, कैदियों, अंधों, सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी मानों में भी आता है। कई जिस्मानी तौर पर दौलतमंद हैं मगर रूहानी तौर पर गरीब है। ठीक है जी, वैसे दौलत हैगी ਉਹਨਾਂ को, माल पानी बाबा इकट्ठा किया हुआ है, हवा नहीं लगन देंदे, दसदे नहीं, लेकिन काम बाबा ही ऊपर है। ठीक है, इस बात के लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन उससे भी बढ़कर उन्हें रूहानी दौलत की जरूरत है। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हो गया हूं, मगर तू गरीब है, अंधा है, नंगा है, ख्वार है। और आपको पता उनका बिजनेस क्या था? उनका बिजनेस था काले रंग की चमकीली ऊन। लेकिन जो खुदा हमें लिबास देता है वो काले रंग का नहीं है, वो सफेद रंग का है। बराक, सफेद पोशाक, जलाली पोशाक हमें वो देता है। एक ये बिजनेस था उनका मुकाशफा में, और दूसरा बिजनेस था सुरमा। उनका बड़ा मशहूर था। उन तो खैर भुल गए ने न्याणे, पिछों हसे ने, वो पाया होना ना अम्मा ने, अम्मा ना पाए तो दादी पा दिंदी सी। ते कॉन्सेप्ट ये कि दी अखां मोटियां हो जाणगियां, उधर वड्डियां लगदियां ने, सुरमा पै जाए, वो वक्ती लगदियां ने, या हो सकता को मेरे पीछे भी हकीकत होवे। उनको कहा कि मुझसे आंख में लगाने के लिए सुरमा ले ले ताकि तू बीना हो जाए। ये मैनिफेस्टो है मेरे खुदावंद का कि जो रूहानी तौर पर अंधे हो चुके हैं, जिनकी स्पिरिचुअल साइड चली गई है, जो ब्लाइंडनेस का शिकार है, जो अंधेपन का शिकार है, जिनकी दिल की आंखें बंद हो चुकी हैं, मेरा यीशु उनकी आंखें खोल ले आया है ताकि उनको आंखें मिल जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें रूहानी आलम में देखी जाती हैं, जिस्मानी आलम में उनकी नहीं समझ आती। उसी बच्चे कुट कुट ओदा पिंडा लाल कर देते थे, हरकतां तो फिर बाज नहीं आंदा। उसके लिए दुआ की जरूरत है। बीवी फैंटी खा के शोहर को अपनी अखां सजा लैंदी आ ते अग्यों जवाब देने तो फिर बाज नहीं आती, ते फिर तुहाडे कुट्टण दा की फायदा होया? काम ते होर सी, काम तो दुआ का है, तुसी लड़न दे हो जिस्मानी तौर पे। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी गैर मुतवाजन दुनिया को तवाजन देने के लिए दुनिया में आए, ताकि रिश्तों में तवाजन आ जाए, सोसाइटी और मुआशरे में। जमीन ते तुसी अमीर गरीब हो सकते हो, लेकिन मेरे खुदा की बादशाही में कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब बराबर होंगे। ये है उसकी बादशाही, ये है उसका मंशूर, ये है उसका काम जिसके लिए वो दुनिया में आया, ये है उसका मंशूर। सिर्फ अंधे बर्तलमाई की आंखें ही नहीं खोली उसने। देखिए जरा इफ्सियों पहले बाब की 18वीं आयत। वो सिर्फ जिस्मानी अंधों की आंखें ही नहीं खोलता। देखिए जरा इफ्सियों पहले बाब की 18वीं आयत। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत, और उसके उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। रूहानी आदमी दी अखां खोल जांदियां ने, इसलिए वो वक्ती तौर दी चीज़ां ते नहीं बहुता ध्यान दिंदा। वो वेखदा है कि खुदा दे जलाल दी दौलत साडे कोल होनी चाहिदी है। बाकी दौलत ते आंदी जांदी रहिंदी है, कदी किसे को, कदी किसे दी जेब च, कदी किसे दी तिजोरी च, कदी किसे दे बैंक अकाउंट च,
ਇਹ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। कई अमीर हो जाते हैं, पर लगा के उठ जाती है। इस पर मैंने एक नोट दिया था आपके दरमियान कि दौलत तो रास्ते की नहीं टिकती, तो फिर नारास्ते की दौलत को कैसे संभाल कर रखेंगे। कभी कोई दौलतमंद है, कभी कोई गरीब है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, पहले गरीब थे आज दौलतमंद है, कई बेचारे बड़े दौलतमंद थे आज गरीब हो गए। तो ये सिस्टम दुनिया में चलता रहता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये मंशूर लेकर आए कि हम रूहानी दौलत से मालामाल हो जाएं, रूहानी गुर्बत दूर हो जाए, लोगों को ईमान की दौलत मिल जाए, लोगों को ईमान का खजाना मिल जाए और रूहानी तौर पर लोग दौलतमंद हो जाए। ये उसका मंशूर था। और 19वीं आयत में क्या लिखा है? और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करो। खुदावंद के साले मकबूल। अब साले मकबूल की बड़ी अहमियत है अहले यहूद में, क्योंकि हर 6 साल के बाद 7वां साल सबती साल होता था, और 7 सबती सालों के बाद 50वां साल जुबली का साल होता था। जुबली लफ्ज इब्रानी लफ्ज योबल से निकला है। योबल का मतलब है नरसिंगा, मेंढे का सींग, ट्रम्पर, या हम जो नरसिंगे बजाते हैं। और जब साले मकबूल आता था तो वो लोग जो कैदी थे उन्हें आजादी मिल जाती थी, जो गुलाम थे वो आजाद हो जाते थे। अगर किसी का प्लाट, किसी की प्रॉपर्टी, किसी के जानवर, किसी का गोल्ड, किसी का सोना, या कोई किसी के पास गुलाम है, तो ये ऑटोमेटिकली तयशुदा था कि साले मकबूल पर वो आजाद हो जाएंगे। यानी गैर मुतवाज़न चीजों को मेरा यीशु मुतवाज़न कर देता है। हालेलुया। चीज ताटी ते किसी दूसरे दे कब्जे च है। वो कहता है कि मैं उस गैर मुतवाज़न दुनिया को तवाज़ुन देना आया, जिस दुनिया में जुल्म और ज़्यादती है, ताकि लोग जाने कि हम सब बराबर हैं। सबको इक्वल करने के लिए, सबको बराबर करने के लिए मेरा यीशु दुनिया में आया। और जब हम 28वीं आयत पढ़ते हैं, आइए देखें, खुदा का बेटा दुनिया में आया। 28वीं आयत पढ़िए जी, 4 बाब की 28वीं आयत, लूका 4:28। जितने इबादत खाने में थे, इन बातों को सुनते ही कहर से भर गए, गुस्से से भर गए। अब गौर कीजिए कि खुदा का बेटा इस दुनिया में आया, लेकिन उन्होंने उसे कबूल न किया, उसके मिशन को कबूल न किया, उसके मंशूर को कबूल नहीं किया। ये बिगड़े हुए लोग थे जिन्होंने मजहबी लिबादा ओढ़ा हुआ था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इसे कबूल नहीं किया। आज भी बेशुमार लोग जिनकी आंखों पर उनके अकायद, उनके बिलीव्स की पट्टियां बंधी हुई हैं, और वो बाइबल को, अनाजील को तनकीद की ऐनक लगाकर पढ़ते हैं, वो सच्चाई की तालीम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो दुनिया में इसलिए आया था कि गैर मुतवाज़न दुनिया को तवाज़ुन मिल जाए, सब बराबर हो जाए, सब इक्वल हो जाए, सब खुशी मनाए, सब उसकी बरकतों, उसकी नेमतों से महसूस हो। इसलिए वो दुनिया में आया था, और उसका मिशन हैरान कुन था, उसका मंशूर हैरान कुन था। और वो मंशूर खुदावंद तक महदूद नहीं रहा, वो मंशूर उसने अपने शागिर्दों को दिया, और वो मंशूर आज भी जारी और सारी है। दुनिया में आज भी जिस्मानी अंधे भी ठीक होते हैं और रूहानी अंधे भी ठीक होते हैं, और जो दौलतमंद हैं वो भी निजात पाते हैं, और जो दौलतमंद नहीं है वो भी निजात पाते हैं। ये मंशूर है खुदा के बेटे यीशु का। जैसे मैंने कहा कि जमीन पर हो सकता है कि आप दौलतमंद हैं, आपकी हैसियत बहुत ऊपर है, बहुत बड़ी
आप शख्सियत हो सकते हैं, लेकिन आसमान पर खुदा की निगाह में सब बराबर है और खुदा की बादशाही में सब बराबर होंगे। तो मेरे अजीजों, क्रिसमस सीजन में हमें याद रखना है कि खुदा का बेटा यीशु दुनिया में क्यों आया। क्यों आया? उसने 18वीं आयत में उसका ऐलान किया, खुदा का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुछ लोगों को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। 21वें आयत में पढ़ते हैं, वो उनसे कहने लगा आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा। यानी वो नबूवत जो यशाया नबी ने की थी, आज वो नबूवत यीशु मसीह पर पूरी हो गई है। हालेलुया। और हमने देखा कि मफलूज शिफा पाता है, लोग हैरान हो जाते हैं। अंधे शिफा पाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं। बुरी रूहों से लोग आजाद होते हैं, लोग ताजुब करते हैं। उसने कहा ये नविश्ता पूरा हो गया। यीशु मसीह की बाबत जितनी नबूवतें थी, जितने पेशन गोइयां थी, प्रेडिक्शन थी, प्रोफेसीज थी, वो पूरी हुई, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में नबियों की नबूवत की तकमील थे। आओ झुके।